Hello everyone, welcome in History Parade. My dear students, today we are going to start our new lesson that name is the Indian subcontinent and history. My dear students, I just observe so many students or maximum students, they are getting bored about this subject history. But let me tell you one thing about history. History is most beautiful subject in the world. Yes, you listen or you heard rightly. Because if you want to growth in your life, if you want to change your lifestyle, if you want to observe your growth, so that times you have to focus on your history or at background. Means for that, you can see in ancient time there were people, right? In ancient time there were people. What kind of they lived? How was they live? And right now, what kind of we are living here? What kind of our lifestyle? If we just comparison between them, so we will get idea it is totally different, right? It is totally different. Why we can comparison between them? हम उन दोनों के बीच में कंपेरिजन कैसे कर सकते हैं? Because at that times they wrote history. उन्होंने उनका इतिहास लिख कर रखा है कि हाँ इस ज़माने में इस साल लोग ऐसे रहा करते थे, लोग ऐसे खाया करते थे, वो उनका फूड था, ऐसा वो फूड था, ये उनके क्लॉथिंग या ड्रेसिंग थे। ये उन्होंने हिस्ट्री को अच्छे से संभाल कर रखा है, लिख कर रखा है। दैट्स वाई वी कैन कंपेरिजन बिटवीन दैट सिचुएशन, है ना। इट मीन्स दैट अगर हमें आगे जाना है, हमारी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, ये हम किससे डिपेंड करते हैं या फिर किससे एनालाइज करते हैं? हिस्ट्री से, राइट। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आप होशियार बन रहे हो या नहीं बन रहे हो, ये आप किससे एनालाइज करते हो? आपके परसेंटेज से, है ना। जस्ट लास्ट टाइम मीन्स लास्ट ईयर you were in a 6th standard, sorry 5th standard, you were in a 5th standard and right now you are in a 6th standard. So आप होशियार बन रहे हो या नहीं बन रहे हो, वो कैसे समझ में आएगा? परसेंटेज से. So you will identify, you will observe, you will notice your percentage of 5th standard. 5th standard में कितने परसेंटेज मिले थे? मान लो 80% मिले होंगे and right now you are getting near about 90%, है ना. So according to that percentage you can say you are going good, right? मतलब क्या हुआ? आपने आपका पास्ट देखा. हिस्ट्री मतलब क्या? पास्ट. हिस्ट्री मतलब क्या होता है? पास्ट. सो आपने आपका पास्ट देखा लास्ट ईयर और उससे आपने ये अंदाज़ा लगा लिया आई एम गोइंग गुड. मतलब क्या हो रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस? सो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. हमारे लाइफ में हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण व्हाट इज दैट पार्टिसिपेंट है. ओके, सो राइट नाउ लेट्स सी. here is another one some here are some another weakness of students. Okay, maximum students say that I can't understand history, that language or that words as etc. And definitely you are reading that history book also. I'm sure, I believe on you, you are reading that book also, lessons as etc. whatever. But what is your answer? I'm just reading every day that history, but also I'm not getting clear point, but also I'm not create the interest in that subject. So exactly what is the reason behind it? उसके पीछे का कारण क्या है? रीज़न क्या है? एक्चुअली हम सब दुनिया भर का पढ़ लेते हैं, है ना. हम सब दुनिया भर का पढ़ लेते हैं. हमारी कंट्री का नाम क्या है ना. हमारे कंट्री में टोटली स्टेट कितने हैं, इस पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज़ है? 195. काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन 195 टोटल कंट्रीज़ है ना. ये सब हम पढ़ लेते हैं. बट व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इट? इफ़ यू आर रीडिंग
if you are getting knowledge about that all valuable history, so you will be keep in your mind near about short period, for short period. So here is my own experience. If you want to really improve your history, so you have to start from your side. आपको आपके पास से हिस्ट्री स्टार्ट करनी होगी, खुद से हिस्ट्री स्टार्ट करनी होगी. खुद से मीन्स व्हाट दैट इफ यू आर जस्ट थिंकिंग ये कौन सा पीरियड चल रहा है, what's going on in history period. So let me tell you one thing about that. If I will ask you one question, where do you live? Where do you live? So what will your answer? I'm sure your answer will be we live in Pusad, है ना. आप यही बोलोगे कि हम पुसद में रहते हैं, right? So what is the name of your city? That name is Pusad. But if I will ask you question, what was the name, मीन्स ओल्ड नेम ऑफ योर सिटी, ओल्ड नेम, पुराना नाम क्या है आपकी पुसद का. पुसद तो नाम अभी अभी आया है, बट पुराना नाम क्या है. सो लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर पुसद. पुसद का पुराना नाम पुष्पावंती था. पुष्पावंती. व्हेन? इन एंशिएंट टाइम. एंशिएंट टाइम में पुसद का नाम पुष्पावंती नगरी था या फिर पुष्पावंती था. वी कैन कॉल इट पुष्पावंती. हमारे गांव को, पुसद को हम पुष्पावंती कहते थे. बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम पुसद. व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट पुस रिवर. पुस रिवर के वजह से यहाँ का नाम पुसद हो गया, है ना. इंटरेस्टिंग. ये है हमारी हिस्ट्री. हमें हिस्ट्री अगर पढ़नी है ना, तो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से शुरुआत करो. उसके बाद आपके माइंड में हिस्ट्री के बारे में क्या होगी, एक जागरूकता, अवेयरनेस पैदा होगा, क्यूरियोसिटी होगी. इट विल क्रिएट क्यूरियोसिटी अबाउट हिस्ट्री. खुद से स्टार्ट करो. वेयर डू यू लिव? फॉर एग्जाम्पल यू आर लिविंग इन श्री रामपुर, है ना. अभी रातों रात आपके घर ज़मीन से ऊपर नहीं आए हैं. योर मम्मी पापा कंस्ट्रक्ट दैट, बिल्ड दैट होम, राइट. बट बिफोर इट, उसके पहले क्या था? देयर वॉज फील्ड. वो हिस्ट्री है. डायरेक्टली घर थे क्या आपके वहाँ पे, जहाँ पे अभी आप रह रहे हो? डायरेक्ट घर थे क्या वहाँ पे? नहीं थे. तो पहले वहाँ पे क्या था? पहले वहाँ पे फील्ड, फार्म था, खेती बाड़ी थी, है ना. फिर बाद में वहाँ पे क्या हुआ? प्लॉटिंग आई, और तब जाकर आपके घर वहाँ पे हुए. ये है हिस्ट्री. अब ये सारा नॉलेज हमें कहाँ मिलता है? If we will collect that knowledge from book, from Google, from YouTube, आज एक्सेट्रा, है ना. सो ये सारा नॉलेज हमें हिस्ट्री से ही मिलता है. मतलब when we will just read history, so that times you will think, that times you will know about your city, about your country, about your world, about your lifestyle, about your food. अभी हम क्या खाते हैं? What is our food right now? Right now we are just eating just like fast food, Chinese, as etc. Right? But what about if I will just ask you, just tell me types of food in ancient time. So what will you answer? They were hunting animal. उस वक्त वो एनिमल को हंट करते थे, शिकार करते थे. लेकिन उससे भी पहले they were eating beets. राइट, दे वर ईटिंग बीट्स. मतलब इस टाइप की हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए. इस टाइप की हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए. सो इन योर बुक हियर इज योर फर्स्ट लेसन. दैट लेसन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. हाउ एंड वाई? जस्ट सी, हियर इज योर फर्स्ट लेसन. दैट नेम इज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री. ओके, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री. Basically, when you just heard that title or that name, the Indian subcontinent, okay, so generally you just thought about the Indian subcontinent means India. You answer, generally you answer just like India, it's India. But in ancient time, it wasn't that correct answer. It wasn't that correct answer. Actually, Indian subcontinent does not mean only India. Okay, so it included other South Asian country just like Nepal,
भूटान, बांग्लादेश, है ना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, as etc. That part, that side also, it was, or they were part of India at that time. But when? In ancient time. Ancient time में ये भी पार्ट हमारे इंडिया के ही थे, हमारे भारत देश के ही थे. Right now we just call our country name Bharat, right? Bharat. Some person call India, right? But if I will ask you one question about your country means I am also Indian, okay? But if I will ask you one question, tell me your country name. So what will you answer? Some students say India, some students say Bharat. But let me tell you one thing dear. In ancient time हमारे भारत देश का नाम क्या था? हमारे भारत देश का नाम क्या था? जम्बूद्वीप. हमारे भारत देश का नाम क्या था? जम्बूद्वीप. जम्बूद्वीप ये हमारे भारत देश का नाम था. ध्यान में रखो, याद रखो, सबसे पहले हमारे भारत देश का नाम क्या था? जम्बूद्वीप. और कुछ समय बाद वो नाम चेंज हो गया. इट हैड चेंज. जम्बूद्वीप बिकम आर्यव्रत. जम्बूद्वीप बिकम आर्यव्रत. मतलब हमारे भारत देश का नाम पहले क्या था? जम्बूद्वीप. उसके बाद क्या हुआ? आर्यवर्त. और अगेन इट चेंज. फिर से वो चेंज हुआ. अब पहले था जम्बूद्वीप, सेकंड हुआ आर्यवर्त, और थर्ड नाम पर उसका थर्ड नेम. व्हाट वाज द थर्ड नेम? दैट थर्ड नेम वाज भारत, है ना. और वो नाम आज भी है, अभी भी है, आगे भी वही रहेगा. ओके, नाउ व्हाई इट वाज भारत और व्हाई इट इज भारत? व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दैट नेम? बिकॉज at that times means in ancient time there was one king. That king was very powerful, strong, lovely and kind king. That name was Bharat. जो अभी हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश में, ये जो नाम है एक राजा पर से दिया गया हुआ है. उस राजा का नाम भारत था और वही नाम हमारे देश को दिया है, भारत, है ना. कितनी हिस्ट्री अच्छी देखो, हाउ लवली इज हिस्ट्री, है ना. इट मीन्स दैट हम जहाँ रहते हैं पहले वहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट करो, वहाँ से खोजना शुरू करो, वहाँ से सर्चिंग इट, गूगल इट, यूट्यूब इट, वट एवर, जस्ट कलेक्ट हिस्ट्री. हिस्ट्री इज सो ब्यूटिफुल. इफ यू नो वेरी वेल अबाउट हिस्ट्री, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग गुड, यू विल बी प्रोग्रेस इन योर लाइफ. क्योंकि हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, है ना. क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए. जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज वन इंसिडेंट. व्हाट वॉज दैट इंसिडेंट? इट रिलेटेड ऑफ पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी, है ना. पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी. पृथ्वीराज चौहान ने उसे 17 टाइम्स ही लॉस्ट 17 टाइम्स इन वॉर. युद्ध में 17 बार उसे पराजित किया. 17 बार. हु? पृथ्वीराज चौहान. बट वन टाइम जिसको 17 बार पराजित किया, फाइनली उसने ही उसे क्या किया? हराया. वाई? अब इफ आई विल आस्क यू वाई इट हैपेंड. If one king lost him 17 times, not a single time, not a 2 time, 3 time, 4 time, near about 17 time, but also why he killed by Muhammad Ghori? So that answer you will get in a history. उसका आंसर आपको हिस्ट्री में ही मिलेगा. इसलिए माय डियर हिस्ट्री पढ़ा करो, है ना. हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो एनीवे, जस्ट विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट आवर दिस लेसन.
the Indian subcontinent and history. Okay, basically Indian subcontinent in ancient time they were part of India when in ancient time, but right now not. अभी नहीं है, अभी right now Indian government has not authority on that part. ठीक है, बट देर आर आल्सो सम एक्ट, वहाँ पे भी कुछ एक्ट बने हुए हैं, एजम्पशंस है एज एक्सेट्रा. वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पीरियड. ओके, मीन्स नेक्स्ट पीरियड मीन्स नेक्स्ट लेसन, because in detail we will study in next lesson. Now in this lesson we will start this geographical condition, and I'm just going to read this geographical conditions. See, first is in the 5th standard we saw at some length that there is a close relationship between man and his environment. Yes, it's reality. हिस्ट्री में अगर आप पढ़ते हो तो एक उस समय के जो इंसान थे उसका काफ़ी गहरा रिलेशन था किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ, है ना. दे केयर फॉर एनवायरनमेंट, है ना. We saw how the changes in the lifestyle of the early man and his technology were related to the changes in his surroundings. अभी if we want to comparison between that changes of technology, okay, or lifestyle, so we have to or we must watch history or we must read history. अगर हमें ये पता करना है टेक्नोलॉजी में चेंजेस कैसे हुए तो हमें हिस्ट्री देखना ही पड़ेगा. राइट नाउ वॉट एवर यू वॉन्ट इन्फॉर्मेशन, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जस्ट विद इन ए क्लिक यू कैन एक्सेस दैट ऑल इन्फॉर्मेशन. बट वॉट अबाउट इन एंशिएंट टाइम? एट दैट टाइम्स देयर वॉज राजदूत, है ना. राजदूत हुआ करते थे, पंछी ऐसे उड़कर जाते थे संदेशा लेकर. राइट, व्हाट अबाउट नाउ? अभी वैसा है क्या? नहीं है. अभी क्या है? अभी जस्ट व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कॉल. इफ यू वांट टू टॉक हिम, सो जस्ट डायल दैट नंबर, वी कैन कनेक्ट विद दैट पर्सन. ये है मॉडर्न टेक्नोलॉजी. ये सब टेक्नोलॉजी उस समय थी क्या? नहीं थी. उस समय ये नहीं था. उस समय पंछी का काम था. उस समय का जो मोबाइल था, वो मोबाइल कौन था? बर्ड्स, है ना. उस समय के बर्ड्स थे मोबाइल. बट अभी नहीं, अभी मोबाइल है. ठीक है, मीन्स फॉर दैट वॉट एवर यू विल गेट इंफॉर्मेशन, सो दैट ऑल इंफॉर्मेशन ओनली ऑन योर क्लिक. बस एक क्लिक पर है, जस्ट वन क्लिक यू विल गेट ऑल इंफॉर्मेशन related that history. अगर पहले in ancient time if they want to collect history, so for that history or for that information he had just like spoil a lot of years, बहुत साल उसे struggle करना पड़ता था, then he can get or access that history. But right now it become very easy, है ना. It become very easy. Just see, we also review the history of human civilization from the Stone Age to the agriculture civilization that flourished on the bank of rivers. Bank of rivers means for that at that times means in ancient time they live in forest. वो जंगल में रहा करते थे और रिवर नदी के पास रहा करते थे. अभी हम कहाँ रहते हैं? अभी हम होम में रहते हैं, हाउस, है ना. अभी हम हाउस में रहते हैं यहाँ पर. बट इन एंशिएंट टाइम दे वेर लिव इन फॉरेस्ट, जंगल में रहते थे. यही यहीं पे बताया है. नाउ हिस्ट्री इज अ कोहेरेंट अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट पास्ट. Let's see again. I'll read again. History is a coherent account of the significant past event in the progress of human culture. Time, place, society and individual are the 4 major pillars of history. यहाँ पे बताया गया कि हिस्ट्री जो है ये कोहेरेंट अकाउंट है किसका? ह्यूमन कल्चर का. ओके, एंड देयर आर 4 पिलर्स. इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट होम, अगर आपको घर बांधना है और वो स्ट्रांग होना चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? फर्स्ट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट फाउंडेशन, आफ्टर दैट कॉलम. एम आई राइट?
Am I right? First you have to just construct foundation, and after that column, then you can construct your home. Why? because because if you want to build strong home, so that times you have to do that, right? So that like same, if you want to make a history, if you want to write a history, if you want to collect history, if you want to read history, so that time there are some 4 pillars. So what is that, or what are they? So they are, you can see here, time, first time, place, you can see here, time, place, society and individuals. Definitely time is very important. हिस्ट्री, किसी अगर हिस्ट्री के बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो सबसे पहले टाइम डिपेंड करता है. व्हाट वाज द टाइम? अब हिस्ट्री कल हुई है क्या? नहीं है ना. इफ यू वांट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज, सो फर्स्ट यू हैव टू सर्च टाइम, कौन से समय में थे, है ना. प्लेस, व्हाट वाज दैट प्लेस? ये सारे जो पिलर्स है, ये सारे जो पॉइंट है, यू हैव टू कवर अप, you should cover up, then you can keep, save that history, you can record it clearly. So आपको समझ में आया? History is a coherent account of the significant past event है ना, in the progress of human culture, and there are 4 major pillars. What are they? Time, place, society and individuals are the 4 major pillars of the history. We cannot write history without them. Really, it's true. अगर हम आपको हिस्ट्री लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल जस्ट से राइट हिस्ट्री ऑफ कोविड-19, मैंने अगर आपको बोला कि कोविड-19 पे हिस्ट्री लिखो, है ना. सो फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट टाइम. कोविड-19 कब आया था इंडिया में, यू हैव टू मेंशन इट, है ना, आपको वो मेंशन करना पड़ेगा. व्हाई वी कॉल इट कोविड-19, व्हाई वी कांट कॉल इट कोविड-20, कोविड-1, कोविड-2? एक्चुअली दैट इज ईयर. कोविड-19 मीन्स कोविड-19. कोविड जो है वो 2019 में आया है. वेयर? इन इंडिया. समझ में आया ना? कोविड-19 हम उसे क्यों बोलते हैं? 19 जो है वो 2019 में कोविड हमारे इंडिया में आया था. दैट्स व्हाई वी कॉल इट 19. सो इफ आई विल से दैट राइट हिस्ट्री ऑफ कोविड-19 और कोरोना वायरस, सो दैट टाइम्स फर्स्ट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट टाइम, प्लेस. फर्स्ट टाइम, आफ्टर दैट प्लेस. You can say directly in India. But if you want to give in detail, so that times you have to mention their place also. It occurred in Wuhan city in China. देखो, अगर आप लिखोगे वहाँ पे ये 2019 में आया था, ये चाइना में आया था, चाइना में वुहान सिटी में हुआ था, it means that you are writing, you are describing time, place, सोसाइटी, है ना, ये सब आप उसमें इंक्लूड कर रहे हो पॉइंट्स. इसलिए ये मेजर पिलर्स कहा है इनको. क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री लिखनी है ना, हिस्ट्री लिखनी है, रिकॉर्ड करना है, तो आपको ये चारों भी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हिस्ट्री करनी होती है. ठीक है. नाउ let's see second. We cannot write history without them. Of these 4 components, place is related to geography or geographical condition. In this sense, history and geography are inseparable. History is influenced by geographical condition in many ways, है ना. When we will just learn history, so that time geography also important. Actually geography part of history. In short way, geography also part of history. अभी जो जहाँ कहीं भी हिस्ट्री हुई है, it's related to geography. है ना. So that's why we call it in your book geography are inseparable. Inseparable मतलब जिसे हम अलग नहीं कर सकते. ठीक है. Now history is influenced by geographical condition in many ways. Now you can see here our diet, clothing, housing, occupations. In fact,
all human life in any region depends to a large extent on its geographical characteristic. मतलब whenever or if we want to study history, so that times we should focus our diet also, diet, clothing, housing, occupations. Okay, मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, उस वक्त क्या करते थे, यह हमें इनका डिफ्रेंशिएट करना होगा. अभी हम जॉब करते हैं, पहले जॉब करते थे क्या लोग, पहले ऐसे लैपटॉप लेकर जाते थे क्या कहीं पे, हाँ आज जॉब है, पहले ऐसे बैग अटका कर जाते थे क्या ऑफिस में, नहीं आई एम गोइंग टू जॉब, ऐसे कोई करते थे क्या, नो. मैक्सिमम पीपल व्हाट वाज देयर ऑक्यूपेशन, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, देयर ऑक्यूपेशन वाज फार्म, वो खेती करते थे, है ना, वो खेती करते थे, हंटिंग करते थे, आज एक्सेट्रा. नाउ for example, the life of the people, I'm just highlight here, just see this line is going, where is it, here, for example, यहाँ से, for example, the life of the people in hilly regions is more strenuous than that of the people on the plains. Not much fertile land is available in the hilly regions, while in the plains it is available on a large scale. That is why grains and vegetables are scarce in hilly areas in comparison. In comparison, people on the plains get them in a sufficient measures. Normally this has an impact on the diet of the people in hilly region. People depend more on the hunting and gathering for their food. We also find other such differences in the lifestyle of the people of the hilly regions and those of the people plains. Yeah, it's very clearly or valuable information. Just like for example, at the times there were places. Okay, सभी जगह की जमीन, what can we call soil. If you will visit another site, so that times you can observe yourself all type of soil. That soils are not same in a color, in a content or in a characteristic, है ना. सभी soil एक जैसी नहीं होती है. कभी कभी sometime you can observe black soil, sometime you observe muddy soil, sometime you observe just colorful soil, है ना. सॉइल सभी काली होती है क्या सभी जगह पे, नहीं, इट्स चेंजेस. सो दैट लाइक सेम, जहाँ पर टोटली ब्लैक सॉइल है वहाँ पर क्या होगा, क्रॉप अच्छे से आएगा, है ना. और जहाँ पर अच्छे से सॉइल नहीं है वहाँ पे खेती बाड़ी अच्छी होगी क्या, नहीं होगी. सो अगर वहाँ पे खेती बाड़ी अच्छे से नहीं हो रही है तो वहाँ पे क्रॉप आएंगे क्या, नहीं आएंगे, है ना. सो उस वक्त वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू फाइंड अनदर और डिफरेंट वेज फॉर लाइफस्टाइल, है ना. बेसिकली वी आर लिव इन अ महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्र में बहुत अच्छे क्रॉप आते हैं, है ना. यहाँ पे बहुत कुछ आता है और वी आर सेटिस्फाइड आल्सो, वी आर हैप्पी आल्सो. बट इफ यू विल विजिट इन राजस्थान, सो आप वहाँ पे खेती बाड़ी कर सकते हो क्या, आप राजस्थान में जाकर बोल सकते हो क्या, नहीं मैं यहाँ पे अभी हल चलाऊंगा. If you will say that statement, if you will say that sentence, so people will laugh on you. वहाँ के लोग आप पर हंसेंगे, है ना. वहाँ पे लोग आप पर हंसेंगे. मतलब it means that culture, that occupation depends upon that region. वहाँ के रीजन के ऊपर वहाँ के ऑक्यूपेशन क्या हुए हैं, डिसाइड हुए हैं. वहाँ के ऊपर, उनके रीजन के ऊपर ऑक्यूपेशन डिसाइड हुए हैं. If you will visit another ways or another cities, another countries, another state, you will know very well about your history, very well about your culture also. Just like for example, गणेश चतुर्थी. On गणेश चतुर्थी के दिन हम क्या करते हैं, गणपति बप्पा मतलब श्री गणेश जी को हम क्या करते हैं, दुर्वाह देते हैं, दुर्वाह और मोदक, वी कैन कॉल इट मोदक देते हैं, है ना. मोदक भी देते हैं. Where in Maharashtra? What about in Kerala, Tamil Nadu? केरला, तमिलनाडु, वो वहाँ पे क्या देते हैं पता है, वो वहाँ पे मछली देते हैं. मछली, गणेश जी को मछली देते हैं. वाई, बिकॉज दैट इज देयर कल्चर.
वो उनका कल्चर है, वो उनकी संस्कृति है। हमारी संस्कृति अलग है, उनकी संस्कृति अलग है ना। मतलब इट्स अ डिफरेंट कल्चर। उनके कॉस्ट्यूम अलग है, उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग है, हमारे कॉस्ट्यूम अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, ये टाइप आते हैं। तो ये सब टाइप, ये सब पोर्शन वी विल स्टडी इन हिस्ट्री। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू again, my dear, history is very important in your life. Okay, I hope you just understood this much portion. In next video we will continue, or we shall continue another topic. So what will that topic? That topic will be geographical features of India. Okay, till here I am just going to stop here. Okay, and in next video we shall continue. Okay, till then, see you, bye bye.